Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School, Ambala Cant. Today, we are going to start the new chapter number 14, Respiration in Plants. In the previous chapter, we discussed how plants perform photosynthesis and the various aspects of photosynthesis. Now, we'll be studying about respiration. So, we'll be learning, do plants breathe? We'll also be learning about the processes of glycolysis, fermentation, aerobic respiration, the respiratory balance sheet, the amphibolic pathway, and the respiratory quotient. So let's begin. First of all, you must understand what is respiration. So respiration is the biochemical process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water, and ATP. Now, ATP, as you all know, adenosine triphosphate, is the energy currency of the cell. So, the energy which is released by the breakdown of food, that is in the form of glucose, with the help of oxygen during the aerobic respiration, particularly when we are talking here, because we are talking about respiration in plants. So it releases carbon dioxide, water, and the energy which is liberated is stored in the form of ATP. Now, all living organisms require energy to perform their life processes. The required energy is obtained by oxidation of the macromolecules which are present in the food. Green plants and cyanobacteria, the cyanobacteria which were earlier called as BGA, the blue-green algae, which are now called cyanobacteria because they are prokaryotic. So they perform photosynthesis and so they are the autotrophs of the living world. The animals are heterotrophs, so they directly depend on plants like herbivores, or they indirectly depend on plants like carnivores. Now there are saprophytes which also depend again on plants indirectly because they obtain food from dead and decaying organic matter. It might be animals or it might be plants. So let's continue. Now green plants perform photosynthesis in the cells which contain chloroplasts, as we discussed in the previous chapter, and translocation occurs in the non-green plants. Outline of photosynthesis and respiration. So, as we talked, the photosynthesis occurs in the presence of chloroplasts and forms the organic compounds. Now, these organic compounds are broken down to yield energy. Now, this process takes place in cytoplasm and in mitochondria. Now, the compounds oxidized are called as the respiratory substrates. Now, the respiratory substrates vary in different organisms. They may be carbohydrates, they may be proteins, they may be fats, or they may be organic acids. Now, oxidation is a stepwise reaction and it is controlled by enzymes. So, every step of the reaction will be controlled by a different enzyme, and the energy which is released will be trapped as chemical energy in the form of ATP, which is the energy currency of the body. Now, the carbon skeleton produced during respiration helps in the synthesis of the different biomolecules. Now, plants require oxygen for respiration. So, no specialized organs for gaseous exchange are present, but they have stomata and lenticels. As you all know, stomata are they are there for the gaseous exchange, and then they also have these lenticels through which they can perform this gaseous exchange. Now, why plants don't need respiratory organs? We have specialized respiratory organs in the animals, but plants don't need respiratory organs. And what is the reason? This is a very important question, so I have specifically marked it here. राइट तो बात करते हैं कि क्यों नहीं चाहिए. सबसे पहले तो हर प्लांट का जो पार्ट है वो अपने लिए खुद गैसियस एक्सचेंज कर सकता है. सो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर ये होता ही नहीं है. जैसे हमारी बॉडी में तो हम जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ नोज से कर रहे हैं और फिर वो लंग्स तक जा रहा है और फिर वो थ्रू द आरबीसीज पूरी बॉडी में कैरी हो रहा है. लेकिन यहाँ पर हर पार्ट अपने लिए खुद गैसियस एक्सचेंज कर सकता है, कैपेबिलिटी है उसके अंदर. सो दे डोंट नीड एनी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन. प्लस उनके अंदर बहुत ज्यादा गैसियस एक्सचेंज की डिमांड भी नहीं है. डिमांड एनिमल से बहुत कम है. तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत सारे सेल्स एक तो डेड हैं, प्लस वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, प्लस लाइफ प्रोसेसेस के अंदर भी उनका जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी का वो कम है.
तो ऑक्सीजन की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो तो फोटोसिंथेसिस से ही उसको मीट कर लेते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट हो रही होती है वो उसको यूज कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी रेस्पिरेशन में उसको वो बाहर रिमूव कर देंगे। तो बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। नाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होती है वो कम होती है, क्योंकि लिविंग सेल्स जो होते हैं वो जनरली सरफेस के आसपास होते हैं। जैसे कि हम थिक वुडी स्टेम्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग सेल्स जो होते हैं वो बाग के आसपास रहते हैं, लेकिन और साथ ही साथ उनके साथ क्या अटैच्ड रहते हैं, लेंटिसेल्स अटैच रहते हैं, जिनकी हेल्प से वो फिर गैसेस एक्सचेंज करते रहते हैं। जो डेड सेल्स होते हैं यूजुअली वो कहाँ होते हैं, दे आर इनर टूवर्ड्स इन द सेंटर, सो उनको चाहिए ही नहीं होता गैसेस एक्सचेंज, सो दैट्स हाउ दे minimize the requirement of gases through the gaseous exchange. Now, energy is produced by the complete combustion or catabolism of glucose. So, the process involved, as you all know, C6H12O6 plus 6O2. अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बना रहे थे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और इसी का बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नाउ कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज जो है ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है। हम तो सीधा ही पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें 10 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और उसे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। सो सभी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडेशन के फूड के लिए तो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। नाउ अब जो ये मशीनरी, एंजाइमेटिक मशीनरी, ये ऑक्सीडाइज कर देती है, लेकिन पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगी विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू पायरुविक एसिड। अब ये ग्लाइकोलिसिस के बाद now the products formed pyruvic acid can either enter into the aerobic pathway or it can enter into the anaerobic pathway. So जो बेसिक सबसे पहले बनेगा वो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका पायरुविक एसिड ही बनेगा। Now, Greek word for glycose is sugar and lysis means splitting. This was discovered by Emden Meyerhoff Parnas, so this is also called as the EMP pathway. एनऑर्गेनिक जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, तो उनके अंदर ये ग्लाइकोलिसिस ही के थ्रू ही वो एनर्जी जनरेट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये साइटोप्लाज्म में होता है, और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे वो एरोबिक करें या एनारोबिक करें, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनको एनर्जी जनरेट करने के लिए परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी लाइफ प्रोसेस है सबके ऑकरेंस के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एनर्जी जनरेशन का जो ये प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्लूकोज सबसे पहले पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा टू फॉर्म द पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब हमें ये भी पता है कि सुक्रोज और जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी जो प्लांट्स के अंदर हम कहते हैं दैट इज स्टार्च, जो कि ग्लूकोज से आगे स्टोर होता रहता है। नाउ वी टॉक अबाउट द एंजाइम्स। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक टॉपिक आ रहा है कि बहुत सारे एंजाइम्स जैसे मैंने बोला इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके नाम यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इन्वर्टेज, हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, इनोलेज, पायरुवेट काइनेज। सो ये आपके अलग अलग एंजाइम्स हैं जो आपके स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आपकी ये इन्वॉल्व रहेंगे। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज जो हमने बात किया, जो कि यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो ब्रेक डाउन होगा इनटू वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू एडीपी में कन्वर्ट होगा। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। Now, this glucose 6 phosphate is further converted into fructose 6 phosphate. Now, the conversion of glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate requires this enzyme which is called as the hexokinase, and this requires the isomerase enzyme because isomerization हो रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एज यू ऑल नो आइसोमर्स हैं। सो यहाँ पर जो आपके पास प्रोसेस हो रहा है दैट इज आइसोमराइजेशन। अब यहाँ पर जो हम ग्लूकोज देख रहे हैं, जिसे हमने अभी बात भी किया था कि सुक्रोज और यहाँ पर या स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, तो सुक्रोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे ग्लूकोज बन रहा है, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 1,6, यहाँ पर बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके लिए एंजाइम जो इन्वॉल्व रहेगा वो रहेगा काइनेज।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा फ्रक्टोज 1,6, जो ये डाइफॉस्फेट है, बिसफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स के अंदर. One is the triose phosphate, which is also called the glyceraldehyde 3-phosphate, and the other one is dihydroxyacetone phosphate, which is called DHAP. In short, this is written as DHAP and this one is written as PGAL. So now after the conversion of NAD positive into NADH, now these are converted into the triose bisphosphate. So अब आपके पास दो मॉलिक्यूल यहाँ triose bisphosphate के आ चुके हैं, और ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ट्रायोज फॉस्फेट, और यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, और द कन्वर्जन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी. देखिए अब तक एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो गया, एनएडीएच का फॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन, और यहाँ से अब जो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे, वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और उससे बन जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, व्हिच इज कॉल्ड एज द पीईपी. फॉस्फोइनोल पाइरुवेट विल फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड, और यहाँ से अगेन एनर्जी रिलीज होगी जिससे कि यहाँ पर एडीपी फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ इन स्टेप्स के लिए भी हमारे पास अलग अलग एंजाइम्स हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे. फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो इन्वॉल्व रहेगा एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज. साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप में जब डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर एंजाइम रहेगा काइनेज. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रहेगा इनोलेज, और लास्ट स्टेप में जो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व है वो है पाइरुवेट काइनेज. अब जो पाइरुविक एसिड यहाँ पर बना है, ये पाइरुविक एसिड कैन एंटर ईदर इनटू द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, जैसे कि कुछ प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में हो रहा है, या फिर हमारी बॉडी में व्हेन वी हैव द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हम देख सकते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है. और दिस पाइरुविक एसिड कैन एंटर इनटू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे आपको पता है ईस्ट में होता है, और इट कैन एंटर इनटू द एरोबिक रेस्पिरेशन व्हिच इज बाय द क्रेब्स साइकिल, जिसमें कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑफ द pyruvic acid and it will be completely broken down into carbon dioxide and water. Now fermentation जैसे हमने डिस्कस किया 3 तरीके से हो सकता है. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है. सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है हमारे पास, जिसमें हमने अभी ये डिस्कस किया था कि ग्लूकोज से अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है. नाउ दिस पाइरुविक एसिड कैन बी कन्वर्टेड ईदर इनटू लैक्टिक एसिड, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि NADH प्लस H पॉजिटिव से क्या बन रहा है, यहाँ पर NAD पॉजिटिव बन रहा है, या फिर इट कैन एंटर इनटू अनदर साइकिल व्हिच इज कॉल्ड एज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें फॉर्मेशन हो सकता है इथेनॉल का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें अगेन देयर विल बी the utilization of NADH plus H positive and it will be converted into NAD positive. Now alcoholic fermentation के अंदर incomplete oxidation हो रहा है. So ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा जितनी भी एरोबिक प्रोसेस है उसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द एनारोबिक, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा. नाउ सेट ऑफ रिएक्शन, पाइरुविक एसिड जो है कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल के अंदर. एंजाइम यहाँ पर जो इन्वॉल्व रहेगा वो रहेगा पाइरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज. यहाँ पर NADH प्लस H पॉजिटिव जो है वो फिर से रीऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू NAD पॉजिटिव. एनर्जी जो रिलीज होगी ये 7%, जो लेस देन 7% होगी ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज. ईस्ट जो है पॉइजन्स टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 13%. जब बढ़ जाएगा उसका अमाउंट तो ईस्ट की खुद की भी इटसेल्फ स्टार्ट्स डाइंग. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और उससे जो एटीपी बनता है वो स्टोर होता रहता है. ये बहुत ही कॉमन है, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये सबसे कॉमन मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती रहती है. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज होता है. इसमें एनर्जी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बनती है एज कंपेयर टू द anaerobic respiration. We'll proceed with this in the next video.